A very good morning to my lovely Patans. I know you are waiting for me, waiting for the GK class. So I am here with you. So today we'll do the GK. In the last class, what we had done? We had done chapter 13 and chapter 14. So today we will be doing the chapter 15, that is importance of science, and chapter 16, water, the sense of life. Okay, so today we'll do these two chapters. So keep your GK book ready and your stationery ready. So let's start. So here is your chapter 15, importance of science. So everyone, first of all, write down the date like I have written at the top of the page. Now name the following signs and symbols with the help of the help box. Help box you can see here at the bottom of the page. Okay, so you must be aware about these signs. So we'll start the chapter. As you can see, the first one, stop, do not enter, means here नो वन इज़ अलाउड टू एंटर. कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता है, यहाँ पे एंट्री बैन है. ओके, सो विल राइट हेयर डू नॉट एंटर. ओके, नाउ द सेकेंड वन, यू कैन सी द मोबाइल फ़ोन और उस पर रेड साइन बना हुआ है. इट मीन्स इट इज़ बैंड, इट इज़ नॉट अलाउड टू बी यूज्ड हेयर. सो द प्लेसेस वेयर एवर यू विल फाइंड दिस सिंबल, देयर यू आर नॉट अलाउड टू यूज द मोबाइल फोन्स. योर मोबाइल फोन्स मस्ट बी स्विच्ड ऑफ. सो हेयर राइट डाउन स्विच ऑफ मोबाइल फोन्स. Okay, switch off mobile phones. Now the third one, you can see this symbol. This is the symbol of high voltage. This is the symbol of high voltage. So right here, high voltage. High voltage means यहाँ पे आपको danger है. ओके, रिस्क है. सो यू कैन गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक देयर. ओके, सो दिस इज द साइन ऑफ हाई वोल्टेज. ओके, नाउ here you can see the symbol of fire here. So you can see the help box, you can see what can be the answer of this sign or symbol. So you can see here on the fourth number, flammable material. Flammable material means the material which catches fire easily. तो जो मटेरियल फायर को, आग को ईजिली कैच करते हैं, पकड़ते हैं, जिससे कि वो जल सकते हैं. सो हेयर वी हैव टू राइट फ्लेमेबल मटेरियल. ओके, next is no smoking. You must have seen this at places like in hospitals, at bus station, railway station, or also in some marketplaces, in some malls. And you may also seen the quotation that smoking is injurious to health. इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. ओके, तो यहाँ पे इस दिस साइन मीन्स धूम्रपान करना मना है. नो स्मोकिंग. सो राइट डाउन नो स्मोकिंग इन द फिफ्थ वन. ओके, नाउ सिक्स्थ इज, you can see this sign here, and you must have seen this signs in many of the movies and serials. काफ़ी movies और serials में आपने ये देखा होगा. This is the sign of danger.
जहाँ पे भी ये सिंबल लगा होगा इट मीन्स आगे खतरा है, डेंजर है. ओके, सो बी केयरफुल. Now the next sign you can see here, this sign, this is the sign for hazard. This is the sign of hazard and it is specially related to the health hazard. Means आपको कोई इंजरी हो सकती है और your health may affect. Okay, so it is also this is the also the sign of danger or risk. ये भी एक खतरे का निशान है and specially related to health. Okay, now the last you can see here in the picture कि कोई पैदल चल रहा है और उसके ऊपर ये रेड मार्क लगा हुआ है. ठीक है, it means wherever you will find this symbol there no one is allowed to walk. Means नो पेडेस्ट्रियंस आर अलाउड. कोई भी पैदल यात्री यहाँ पे अलाउड नहीं है. सो हेयर विल राइट नो पेडेस्ट्रियंस. ओके, एंड you may also know this plus symbol. This symbol shows the first aid facility available. जहाँ पे ये symbol बना होगा वहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटी मिलती है. नाउ व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एड मीन्स सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो जब तक उसे कोई हॉस्पिटल से लेने नहीं आता, एम्बुलेंस नहीं आती या कोई डॉक्टर नहीं आता, सो टिल देन वी हैव टू गिव द फर्स्ट एड टू हिम और हर. हमें उनको स्टार्टिंग की जो ट्रीटमेंट है वो देनी होती है. सपोज़ अगर किसी को कोई कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें उस ब्लीडिंग को पहले वी विल टेक द एंटीसेप्टिक डेटॉल लिक्विड, विल टेक द कॉटन, उससे साफ़ करेंगे. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच कम्स अंडर फर्स्ट एड. ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर 15. ओके. Okay, now everyone come to chapter 16, that is water, the essence of life. So everyone write down the date again at the top of this page. So water is life. जल जीवन है and water science is an interesting subject. Now the chapter name, water, the essence of life. Essence of life means nothing can survive without water for a long time. अगर पानी नहीं होगा तो हम भी ज़्यादा दिन survive नहीं कर सकते. Okay, so essence is most important quality of something, and here when we are talking about the water, the essence of life, it means that nothing can survive. The things which are living things cannot survive without water. Okay, so read the questions and take the correct answer to check your understanding. First is, what is the freezing point of water? Freezing means when your water changes from liquid state to solid state. So that is your freezing. Freezing means, just now I told, फ्रीजिंग मीन्स जब आपका वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. नाउ व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर कब फ्रीज़ होना स्टार्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में टर्न करता है, दैट इज़ 0 degree Celsius. So just tick on the box
given in front of 0 degree Celsius. Okay, so liquid form you all know, water की liquid form आप सबको पता है. solid form क्या होती है? yes, ice. okay, so freezing point क्या होता है? जब आपका वाटर लिक्विड से आइस फॉर्म में टर्न करता है. ओके, सेकेंड इज व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर कब बॉयल होना स्टार्ट करता है? सो द आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो जस्ट टिक ऑन द बॉक्स विच इज़ गिवन इन फ्रंट ऑफ 100 degree Celsius. Come to the third one. Water in solid form is known as. Just now we have done. Water in solid form is known as. Very good. Ice. Water की solid form क्या होती है? Ice. Now water at room temperature is a liquid, solid और gas. रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, सपोज़ आपने 1 ग्लास वाटर लिया, उसको रूम में रख दिया, अपने रूम में या घर पे कहीं पे भी. सो विल इट बी लिक्विड, सॉलिड और गैस? वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सॉलिड होगा या गैस? यस, वेरी गुड. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. सो एवरीवन जस्ट टिक ऑन द बॉक्स गिवन इन फ्रंट ऑफ लिक्विड. Next is water that is suitable for drinking is known as. So जो पानी पीने के लिए suitable है, अच्छा है, what we call that water? Your options are potable water, distilled water, natural water. So what will be the answer? Answer will be potable water. Potable water is safe for drinking and is used for preparing food. पोर्टेबल वाटर पीने के लिए भी सेफ होता है और खाना बनाने के लिए भी. ओके, सो पोर्टेबल वाटर इज योर ड्रिंकिंग वाटर. कम टू सिक्स्थ वन. कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज़ नोन एज. जब आपका वाटर वेपर्स की फॉर्म में आता है, व्हाट वी कॉल इट, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन. सो द आंसर इज वेपराइजेशन. जब आपका वाटर जो है भाप, स्टीम की फॉर्म में आता है, सो वी कॉल इट वेपराइजेशन. गैस की फॉर्म में जब आता है, जब आप पानी को बॉयल करते हो, उसमें से भाप निकलती है, गैस निकलती है ना, स्टीम. सो दैट इज़ योर वेपराइजेशन. सेवंथ, विच केमिकल इज़ एडिड टू ड्रिंकिंग वाटर टू किल जर्म्स दैट कॉजेज इलनेस. सो विच केमिकल इज़ एडिड टू द ड्रिंकिंग वाटर विच किल द जर्म्स दैट कॉजेज इलनेस. तो जो जर्म्स हमारे अंदर इलनेस कॉज करते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, उन जर्म्स को मारने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा केमिकल ऐड किया जाता है? योर ऑप्शंस आर क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट. सो द आंसर इज़ क्लोरीन. ओके, आपने मे बी समटाइम्स नोटिस किया होगा, आपका जो सप्लाई का वाटर आता है, कई बार उसमें दवाई जैसी स्मेल आती है. सो वो इसी वजह से आती है, उसमें क्लोरीन ऐड किया होता है. ओके. एट्थ इज स्टीम इज़ विच फॉर्म ऑफ वाटर. स्टीम वाटर की कौन सी फॉर्म है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. वेरी गुड, द आंसर इज गैस. नाउ द लास्ट, इट इज़ अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन. ये इवेपोरेशन का अपोजिट है. It takes place when water vapors in the air condenses from a gas back into a liquid form. ये तब होता है जब वाटर वेपर्स जो एयर में होते हैं वो कंडेंस होके गैस से कंडेंस होके दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं. सो व्हाट वी कॉल दैट प्रोसेस?
सो इवेपोरेशन तो हो नहीं सकता एज इट इज़ अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन. वेपराइजेशन हो नहीं सकता क्योंकि इट इज़ कमिंग बैक इनटू लिक्विड फॉर्म. वेपराइजेशन में तो वेपर्स बनते हैं. सो द आंसर इज़ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है, आपके वाटर वेपर्स हैं जो वो दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, कन्वर्टेड टू द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. ओके, सो दैट इज़ कंडेंसेशन. जब आपके वाटर वेपर्स कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो लिक्विड की फॉर्म ले लेते हैं. लाइक आपने देखा होगा कई बार किचन में मम्मा जब कुछ बॉईल करते हैं और उसके ऊपर हमने उसको कवर कर रखा है, कंटेनर को जो भी लिया है कंटेनर, और जब आप उस कंटेनर के ऊपर जो भी उसकी कवर है या प्लेट है उसको हटाओगे तो आप देखोगे प्लेट के बैक साइड नीचे काफ़ी पानी होता है. सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ओके, जो वाटर वेपर्स हैं वो टर्न हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ओके, नाउ रिमेंबर roughly 70% of an adult's body is made up of water. तो ये रफली है, इट्स एन जस्ट एन आइडिया दैट अप्रॉक्स 70% जो बॉडी होती है एडल्ट्स की, एडल्ट्स मीन्स फ्रॉम द एज ऑफ 15 एंड टिल 25 वी कैन से, तो उनकी जो बॉडी होती है वो अबाउट 70% पानी से बनी होती है. ओके, एंड हेयर यू कैन ऑल्सो सी आइस, द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, and this natural form, natural water, that is your liquid form, and oxygen is the gaseous form. Okay, so this is the chapter 16. So just complete the chapters in your GK book. Also learn both the chapters. Soon you will be having the class test of GK also, so keep revising the chapters and complete this in your GK book. Okay, thank you so much for attending the class. Take care, have a wonderful day. Bye.